लाइक हमारे रेस्टोरेंट में रिस्त को रिस्त ही बोला जाएगा, रिश्ता नहीं बोला जाएगा, गोश्ताब को गोश्ताब ही बोला जाएगा, यखिन को यखिन ही बोला जाएगा, यखनी नहीं बोला जाएगा. Not of celebrities. Deepika Padukone is a very big fan of our food. Whenever she's in Bangalore, Deepika and Ranveer order from us. हमने ना अंबानीज को उबुज खिलाई, हमने उनको सचल खिलाई, हमने उनको लिस्ट खिलाए, हमने उनको नुनर खिलाए, हमने उनको नदर खिलाए, हमने उनको गोगजे आर और रजमा खिलाए. एक कस्टमर ऐसा नहीं था जिससे मैं मिली नहीं हूं, जिससे मैंने बात नहीं की है. एक पोर्शन, एक ऑर्डर ऐसा नहीं था जो मेरी नजर के सामने से किचन से बाहर नहीं निकला है. आपको मैं बताऊं, हमारा सरपोश का जो फुल ऑन एक्सटेंडेड मेन्यू जो है उसमें 4 times more वेजिटेरियन डिशेस हैं देन नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन में तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि और क्या करूं. दिस इज कश्मीर लाइफ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुशी होंगे. नहीं भी होंगे तो खुशी रहा कीजिए. नाज़रीन, today we have with us somebody who has not just built a restaurant, she has built a global experience. बैंगलोर में कश्मीरी सकाफत को क्यूरेट करने से लेकर कई कॉन्टिनेंट्स तक इन्होंने कश्मीरी जायके को लिया है. We have with us Azmat Ali Mir, who has taken tradition and ambition together. Azmat, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आज बुलाया. और before we start, tell me something. Is it haq or Rogan Josh? What about you? After rotten meat, it's haq. For me, if it is haq to mas cooked by my mom, then definitely that. Haq to mas. But yeah, it's a tie. Like Sarposh ka Rogan Josh. It's right up there. So okay. So before we move to Sarposh Vazwan and Manzar Experience Curators, tell me something about yourself. I was born and brought up in Kashmir. मेरी schooling भी कश्मीर से ही हुई. Presentation Convent School से मैंने अपनी Let's wait. Cheers. Once a conventee. Always a conventee. I think the maximum of episodes I've been doing this because most of the conventees I've seen here, not in school. Yeah. So, and I think as a conventee, you know ki that shapes a huge part of your identity. I have so much love and affection for the school. A lot of... Yes. So I completed my studies from Presentation Convent. Okay. And then briefly I moved to Jalandhar for my engineering. I'm a computer science engineer by education. Okay. So you went for engineering first. Yes. I went for engineering. I'm a computer science engineer. In fact... On your own or your parents pushed you? No, my parents actually did not push me at all. So you had a free hand? I had a free hand, but not a very free hand also. I honestly wanted to pursue journalism. Oh. Because I was extremely fond of shows like TLC. अच्छा. And I think जब मेरी एज के बच्चे टीवी पे कार्टून्स या सीरियल्स देख रहे थे या सिटकॉम्स देख रहे थे, तो मैं TLC पे देखती रहती थी डिफरेंट कुजीन्स के बारे में, डिफरेंट जगहों के बारे में, और मुझे बहुत शौक था. एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑल्सो. ओके. तो बहुत अच्छा लगता था मुझे इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में. एंड माय मॉम वाज लाइक, हाँ ठीक है, देखा जाएगा. एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अकम्प्लिश्ड educated people. My mother's a doctor. Lovely. My father's an engineer. You know, they're both at been at very senior positions. I come from a lineage of very educated people from both sides of my family. तो जैसे थोड़ा बड़े होते गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया, and I was really good at coding. अच्छा. During my school days. Okay. So my teachers also said ki, you know, you're really good at this, and computer science engineering is the field that you should definitely go into. Yeah. So चले गए, कर लिया. And then what I was a blend, like history, journalism, and then directly into coding. And now again to Vazwan. Yeah.
एंड या सो वो हुआ एंड आई ब्रीफली वेंट टू जलंधर बट मेरी तबीयत खराब हो गई वहां पे विच फोर्स्ड मी टू कम बैक होम. आई वाज वेरी सिक एंड वापस आई तो मैंने माइग्रेशन कर लिया इन कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड आई जॉइंड SSM College of Engineering. Okay. And I finished my degree from SSM College of Engineering. Okay. And I think I give a lot of credit to all three institutions that I have studied in. जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा I was able to discover who I am. मैं अपने आप को I could become the person that I am because of these places. जो independence और जो opportunities, जो world view मुझे देखने को मिला when I went out to Jalandhar. Even though मैं बहुत थोड़े टाइम वहाँ रही, मैंने अपनी डिग्री वहाँ से complete नहीं की. But जिन opportunities से मैं वहाँ पे जिन अपॉर्चुनिटीज के साथ मैं जुड़ सकी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट में बन सकी, जिनमें बहुत क्विकली मैं राइज कर सकी और ग्रो कर सकी, दे वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रियली रियली हेल्प मी बिकम द पर्सन दैट आई एम. उसके बाद मेरी शादी हुई एंड शादी के बाद आई मूव टू बैंगलोर. Okay. एंड What year was this? दिस वाज 2018. Okay. 2018. Okay. आई मूव टू बैंगलोर एंड बैंगलोर जाने के बाद जो है मैंने अपना एज एन इंजीनियर, आपको पता ही है कि एक कॉर्पोरेट जर्नी आप शुरू करते हैं, वो मैंने शुरू की एंड बहुत क्विकली मैंने रियलाइज कर लिया कि दिस इज नॉट समथिंग आई एम एंजॉयिंग. मजा नहीं आ रहा है ये करने में. दिस इज नॉट द पर्सन दैट आई रियली एम. एंड You were still exploring yourself. जी Okay. जी. और एंड आई वाज आल्सो वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज ओनली 22 When you got married. when I moved to Bangalore. I was just a 22-year-old girl. Lovely. And I was still sort of just starting out, figuring out क्या है लाइफ और क्या करना है और क्या करना चाहिए and all of that. But you have been always experimenting. yes, aren't you? Yeah. Always. I mean, वो कोई होता है ना थोड़ा you have a gypsy soul inside you जिसको खुजली होती है जब तक वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर रहा है, जब तक वो कुछ नया नहीं कर रहा है. तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं मोनोटनी से बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ. Okay. और मुझे लाइफ में हमेशा चाहिए कि मैं कुछ फुलफिलिंग करूँ और कुछ ऐसा करूँ जिसमें सही में वाकई मायनों में मुझे बहुत मजा आ रहा हो और जो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ. मैं वो उस तरह का काम नहीं कर सकती हूँ जो मैं एंजॉय ना कर रही हूँ. So whatever you are doing right now, are you enjoying that? Absolutely loving it. Wouldn't trade it for the world. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशनल जर्नी और भी कंटिन्यू की. मैंने IIM बैंगलोर से अपना जो है गोल्डमैन सैक्स 10,000 वुमेन प्रोग्राम कंप्लीट किया. Okay. उसके बाद मैंने IIM अहमदाबाद से अपना क्रिएटिव एंड कल्चरल बिजनेसेस प्रोग्राम कंप्लीट किया. Lovely. सो ये सारी चीजें मैंने पैरेलली कर रही थी. बट उससे पहले जो है इमीडिएटली आफ्टर माई कॉर्पोरेट जर्नी एंड आई रियलाइज कि ये मजा नहीं आ रहा है करने में, मैंने अपना जो बिजनेस है उसको तरतीब देना स्टार्ट किया. और one thing led to another and here we are today. Yes. So tell me something. मतलब this was your educational journey जी. and you have gone into like everything. ठीक है, मतलब सब ट्राई किया है आपने. तो मुझे बता दीजिए, what was the spark? What was the moment when you realized no, मुझे ऐसा करना है. I have to take Kashmir's culture to Bangalore. ऑनेस्टली आपको बताऊं तो देयर वाज नो वन आहा मोमेंट. एंड बहुत सारे जो लोग आपके पास इस कुर्सी पे आके बैठेंगे वो आपको बोलेंगे कि हम बैठे, हमने सोचा, हमने प्लान किया, हमने बिजनेस प्लान बनाया, ऐसा किया वैसा किया. ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मेरी शादी एक नॉन कश्मीरी फैमिली में हुई थी. Okay. और जब मैं अपनी शादी के बाद यहाँ से बैंगलोर गई, एक तो वो जो थ्रू आउट वो जो फेज था, तो इट वाज बिकॉज एक इंटरकल्चरल मैरिज थी. तो वो एक होता है ना कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. एंड हम कश्मीरियों में तो खास ये है कि हम एंजॉय करते हैं अपना कल्चर, लोगों को दिखाना. हम एंजॉय करते हैं लोगों को एजुकेट करना. और स्पेशली व्हेन जब आपके पास वो लैंग्वेज है उसको आर्टिकुलेट करने की, जब आपके पास नो हाउ है कि आप बता आप अपने कल्चर के बारे में एक्चुअली बात कर सकते हैं. और मेरे जैसा इंसान जो है,
have a lot of belief in something called authenticity. कि जो बात है, उस जो चीज है, जो ऑथेंटिक चीज है, उसको आप उसके रियल फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए. इस तरह से प्रेजेंट मत कीजिए किसी के सामने कि आप उसको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं. उसको अच्छा लगे या नहीं लगे, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. बट जो है आप उस चीज को जो है बहुत खुल के. तो आई रिमेम्बर कि वो शादी वाले ड्यूरेशन में इट वाज स्मॉल थिंग्स लाइक अपने नॉन कश्मीरी फैमिली को एक्सप्लेन करना कि पश्मीना एक्चुअल में क्या होता है, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट ऑफ शॉल या उनका कॉन्सेप्ट ऑफ फिरन या उनका कॉन्सेप्ट ऑफ खाना, बाकी सारी चीजें. तो वो वहां से ही एक स्पार्क, एक हिसाब से आप समझिए कि शुरू हो गई थी. लेकिन उसके बाद जब मैं बैंगलोर गई और जब मैंने वहां रहना शुरू किया तो मैं बहुत जल्दी रियलाइज किया कि ये कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं बहुत ज्यादा हैं. मेरे हस्बैंड की फैमिली जो है वो बैंगलोर से नहीं है, वो लोग यूपी से हैं. ओके. बट वो लोग बैंगलोर में हैं, तो उनके घर में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्लेंड ऑफ कल्चर्स चल रहा था, जहाँ पे नॉर्थ साउथ सब मिक्स था. Okay. और देयर वाज नॉट, इट्स नॉट लाइक वो लोग बैंगलोर का कल्चर फॉलो करते थे, या इट्स नॉट लाइक वो एक अच्छा ब्लेंडेड इंटरेस्टिंग ब्लेंड था उसमें. लेकिन मुझे वहां लग रहा था कि इसमें वो देसी मोड में चल रहे थे. जी, और इसमें कहीं पे एक स्पेस नहीं है फॉर मी एज अ कश्मीरी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत खिचड़ी पकी हुई है वहां पे. तो इस खिचड़ी में और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से कोई बहुत ये नहीं. तो ऐसा कि मेरी एक इंडिविजुअलिटी है. मैं जो है I have a very strong, and I'm truly a Kashmiri who's always worn her Kashmiri heart on her sleeve. और I think जलंधर जाने के बाद always carry a culture in our hearts wherever we go. And बाहर I think when you step out of Kashmir, शायद जब आप कश्मीर में रहते हैं तो आप इस चीज को थोड़ा for granted ले भी लेते हैं. But जब आप कश्मीर से the moment you step out of Kashmir, आप realize करना शुरू करते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ बड़ा स्पेशल है, हमारे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा है. तो खास तौर पे जब मैं जलंधर पढ़ने गई उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि the lovely culture that we actually have, हम कहाँ से आते हैं और what are the amazing beautiful things. But एक कॉन्टेक्स्ट इसमें उसके बियॉन्ड भी है कि अमेजिंग ब्यूटीफुल थिंग्स भी है, लेकिन बाकी चीजें भी है, एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है जो आप समझते हैं जब आप बाहर निकलते हैं. जब आप रियलाइज करते हैं कि हमारे लिए क्या नॉर्मल है और ये शायद और किसी के लिए नॉर्मल नहीं है. बहुत सारी चीजें जो अल्फाज हम बड़े हुए सुनते हुए, कर्फ्यू, हड़ताल, ये चीजें हमारी डेली डिक्शनरी का पार्ट हैं. They were our routines. जी, ये हमारे रूटीन, स्पेशली एज अ किड ग्रोइंग अप इन द 90s and 2000s, तो ये तो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा था. लाइक हमने 2008 देखा, हमने 2010 देखा, हमने 2018 देखा, 16 देखा, हमने बहुत कुछ देखा है. Exactly. एंड हमने 2019 देखा. तो हमने बहुत सारी चीजें जो हैं देखी हैं, और बहुत सारी चीजें हमने अपने अंदर अब्जॉर्ब की हुई हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे लिए एक ऐसा नॉर्मल बन गई है जो आप जब बाहर किसी से बात करते हैं तब आपको रियलाइज होता है, ओह माय गॉड, दिस इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर एनीबडी. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड इतना नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए इसको. तो वो कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत कम लोगों को बाहर समझ में आता है, बिकॉज ये जो हमारी लिव्ड रियलिटी है वो उनकी कभी नहीं रही है. तो वो रियलाइजेशन वहां से स्पार्क होनी शुरू हुई, और मैं ऑलरेडी अपनी जॉब से तंग आ गई थी और ऑलरेडी मुझे लग रहा था. तो आई रिमेम्बर मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो मेरे साथ उसी कंपनी में काम कर रही थी, और वो मेरी कॉलेज बैचमेट भी थी. एंड मोस्ट ऑफ माई कॉलेज बैचमेट्स एट दैट टाइम वर ऑल इन बैंगलोर, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट बैंगलोर में हुई थी, और लगभग सभी जो है वहीं पे थे. तो हम लोग जब से बैंगलोर गए थे, बैंगलोर की लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है, इतना दूर है सब कुछ, कि हम कभी मिले भी नहीं थे कॉलेज के बाद. तो हमारा ये था कि हम एक छोटा सा रियूनियन टाइप कर लेते हैं. तो कहाँ करें, चलो अजमत के घर पे कर लेते हैं. हाँ, क्योंकि बाकी सब तो हॉस्टल्स में, पीजीज में रह रहे थे उस टाइम पे. तो शी इज स्टेइंग विद हर इन-लॉज एटसेट्रा, तो वहां पे इसके घर पे कर लेते हैं. तो मैं कहा ठीक है. हम लोगों ने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि पॉटलक करेंगे, तुम यखनी लेके आना, तुम और कुछ बनाना, तुम कुछ लेके आना, मैं बत्त बनाऊंगी, और हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे. और आई रिमेम्बर कि मैं एक मीटिंग में जा रही थी, मैंने ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के छोड़ दिया, और मैंने उनको बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स को ऐड करो यार, सबको ऐड करो जो भी हैं यहाँ पे, मेरे पास नंबर्स नहीं है सबके.
एंड 1-1.5 घंटे के बाद मैं अपना फोन देख रही हूँ तो मतलब कॉन्स्टेंटली पिंग पिंग हो रहा था. लाइक हाँ ठीक है, ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. मीटिंग के बाद मैं अपना फोन खोल के देख रही हूँ, कुछ 150 लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं. मैं कहा तुम लोग पागल हो गए हो, 150? मतलब दोबारा वलीमा करवाओगे क्या है, व्हाट इज योर प्लान? तो आई वाज लाइक ये तो घर पे नहीं हो सकता है. So I started looking at options कि क्या कर सकते हैं. मैं कहा चलो ठीक है, कोई कैफे वैफे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, करते हैं. एंड उस टाइम पे बैंगलोर में कोई जगह थी जहाँ पे कश्मीरी फूड वगैरह सर्व होता था, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ ये करती हूँ. आई गॉट इन टच विद द प्रमोटर्स ऑफ दैट प्लेस. तो मैंने उनके साथ बात की, कितनी स्पेस है आपके पास, कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं एक्सेट्रा. बट आई वाज लाइक मैं यार एक बार खाना टेस्ट कर लूँ, बाहर लोग बोलते बहुत कुछ हैं, देख लेते हैं एक बार. तो आई विल नॉट नेम द प्लेस, बट मैं गई वहां पे एंड बताया नहीं मैंने प्रमोटर्स को कि आई एम गोइंग देयर या ऐसा कुछ. बट मैं गई और मैंने खाना टेस्ट किया एंड आई वाज लाइक ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी ना बेइज्जती मेरे पूरे जो इन-लॉज हैं उनके बीच में हो जाएगी कि ये तो नहीं है, मतलब मनछाउन छुनके हैं. सो आई डोंट वांट टू डू दिस, ये नहीं होगा, क्या कर सकते हैं. सो आई स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशंस विद माय फैमिली. मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उनको बोला कि यार मुझे ये करना है, ऐसे करना है. एंड बाय दैट टाइम द इंटरेस्ट इन दिस हैड ग्रोन अ लॉट मोर. तो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हमने सुना आप कुछ कर रहे हैं, तो हमने छोटा सा एक पोस्टर बना दिया. जब हमने डिसाइड किया कि ठीक है थोड़ा बड़ा करना है इसको, एक पोस्टर बना दिया कि हम पूरा एक लंबा जी बन गया. और देखते ही देखते इट सॉर्ट ऑफ टुक ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. और वो इतना बड़ा हो गया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको चला रही हूँ या ऊपर वाला इसको चला रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. वर्ड जस्ट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, क्योंकि आई थिंक सालों में ऐसा कुछ बैंगलोर में नहीं हुआ था. और बैंगलोर एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स है कश्मीरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट क्राउड भी है कश्मीरी, वहां पे ऐसे कश्मीरीज भी हैं जो बहुत साल पहले 90s में 2000s में वहां बिजनेस करने गए हैं और वो अपनी फैमिलीज के साथ वहां बसे हुए हैं. वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब्स के लिए जाते हैं और अच्छे सीनियर पोजीशंस पे हैं. वहां पे कश्मीरी पंडित्स की एक साइजेबल कम्युनिटी है. तो एक आप यूं समझ लीजिए कि बैंगलोर में कश्मीरी सोसाइटी का एक मिनी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है. एंड मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था वो. अब मुझे अलग अलग क्वार्टर्स से फोन आ रहे, लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, हमने सुना जी आप, और मेरे नाम से बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम अ बॉय. तो अजमत साहब छा हंसते थे, अजमत साहब आई वाज लाइक जी बोल रही हूँ. हंस अजमत साहब, बस अजमत ये मना सो इवेंट्स चुका रही मैं चल रॉन्ग नाम. लाइक नहीं सर मैं ही हूँ, मुझसे बताइए, बोलिए. तो यू नो इट वाज अ लिटिल थोड़ा सा लोगों के लिए कि हाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. एंड वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मैंने फिर अपने पेरेंट्स को बोला, मैं कहा देखो भाई खाना तो मुझे किसी भी हाल में कश्मीरी करना है, अब आप बताओ कि कैसे क्या कर सकते हैं. एंड हमारे जो फैमिली के जो वाजा हैं, जो हमारी फैमिली के लिए जनरेशन से बनाते आए हैं, हमने उनको कांटेक्ट किया और कहा इस तरह से एक इवेंट वगैरह. तो मैंने उनकी टीम जो है वहां से बैंगलोर लेके आई इस इवेंट के लिए. From Kashmir to Bangalore. And also because मैंने already जब उस कैफे वगैरह के साथ बात की थी, तो अली सैफुद्दीन is related to me. तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि अली भाई ऐसे he was the first person I reached out to. I said अली भाई ऐसे है. तो he was like हाँ मैं फ्री हूँ, आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है. देन जब ये इतना बड़ा हो गया, मैं कहा सिर्फ अली को बुलाऊंगी तो काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा. तो जरीफ साहब को मैं अपना मेंटर मानती हूँ. मैंने फोन उठाया और मैंने जरीफ साहब को बोला, मैंने कहा आप आएंगे मेरे पास? कहा आप मेरी बेटी हो, आप मुझे बुलाओगे और मैं नहीं आऊंगा? मैं जरूर आऊंगा. रईस मोहिद्दीन हमारे बहुत जो हैं, आई वाज लाइक रईस भाई को कॉल किया मैंने, वो मेरे फादर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे. ही वाज लाइक आप बुला रहे हो, आप आमिर साहब की बेटी हैं तो मैं तो आऊंगा. सो ही केम ऑन बोर्ड. उसके बाद उस टाइम पे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, रेशमा नाम के हमारे चांस पर्सन थे जो बहुत ज्यादा जो है एंटरटेन करते थे सब लोगों को शादियों में. तो मैंने उनको रीच आउट किया, उनकी फैमिली को रीच आउट किया एंड वो बहुत खुशी से मान गए और दे वर लाइक हाँ बिल्कुल हम आएंगे जरूर. उसके बाद हमारे
होम ग्रोन, और विंटर का टाइम था, तो मैंने ये दिसंबर में ये किया था. Okay. तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैंने इनको उन्होंने, एंड माय मदर इज वेरी पैरानॉइड अबाउट ऑल दीस थिंग्स. तो मेरी मदर बोल रही बर्फ हुई तो, फ्लाइट नहीं गई तो, ये सारे लोग पहुंच नहीं पाए तो मैं कह रही हूँ अच्छा ठीक है, मैं 2 दिन पहले की टिकट कर लूंगी, कोई बात नहीं है. जिस वजह से कुछ बैकअप रखो, अगर नहीं आ पाए तो फिर क्या करोगी. सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, कुछ करना पड़ेगा. तो आई रीच्ड आउट टू मुनीम, मोहम्मद मुनीम, जो उनका बैंड है अलिफ. Okay. एंड दे वर बेस्ड इन पुणे. तो आई वाज लाइक अच्छा, अगर कश्मीर से ये लोग नहीं आ सके, वो तो पुणे से आ जाएगा. अच्छा ठीक. तो आई रीच्ड आउट टू मुनीम एंड ही अग्रीड टू कम डाउन विद हिज एंटायर बैंड. देन हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से आबा हंजूरा हैज अ लवली बैंड कॉल्ड सोफिस्टिकेशन. Okay. और वो बैंगलोर बेस्ड थी. Okay. तो आई रीच्ड आउट टू हर एंड शी वाज लाइक कश्मीरी कम्युनिटी के लिए तो जरूर आई विल पार्टिसिपेट. तो एक लार्ज स्केल कॉन्सर्ट तैयार हो गया. Okay. और What was supposed to be a reunion became a massive I don't know what to call it. It's huge. और जो है And it was just the inception. और मुझे बैंगलोर मूव हुए हार्डली कुछ महीने हुए थे. मैं अप्रैल में बैंगलोर मूव हुई थी, दिसंबर में मतलब नवंबर. मुझे अभी भी, मैं रिसेंटली अपने फोन में कुछ चैट्स वगैरह ऐसे ही देख रही थी एंड आई केम अक्रॉस दैट. मुझे आज भी याद है 15th November of 2018 is when my friend and I decided कि हम ये करेंगे, और हम लोगों ने ग्रुप बनाया 15 नवंबर को. 27th नवंबर तक ये इतना बड़ा बन चुका था कि हमारे हाथ में नहीं रहा था फिर. और 30 दिसंबर को इवेंट हुआ. उसी बीच में जो है माय हस्बैंड मेट विद एन इंजरी. ही वाज इन द हॉस्पिटल. ही हैड अ बैक सर्जरी while all this was happening, and my mother was like तुम कैंसिल करो बिकॉज तुम 20 दिन से हॉस्पिटल में हो, तुम्हारे हस्बैंड की स्पाइन सर्जरी हो रही है, तुम यहाँ हम नहीं कर सकते. एंड आई वाज लाइक अब मैं बैक आउट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज nobody is going to understand. Tickets बिक गए. And by that point of time, the entire Kashmiri community from everywhere had come out and support. We had sponsors on board. We had people who were putting money in it. And I was like, अब ये मेरा, it's not mine anymore. ये अब public का है. और now I'm nobody. तो मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. We have to do it. Honor the commitment that we've put out. So my parents came down to Bangalore to support me because मेरे husband की surgery थी and my parents were like नहीं, we want to be there for him and we want to be there for you and we want to be there for this. उसी बीच में my grandmother was abroad and she had a heart attack and my father had to fly out for that. So it was a very very crazy time. मैं वही बोलती हूँ ना कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं अल्लाह की मदद से और मेरे पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, क्योंकि देयर इज नो वे ह्यूमनली पॉसिबल कि इस तरह की कोई चीज कंसीव भी की जा सकती थी या की जा सकती थी, और इतने कम गैप में, और बस फटाफट. और आई रिमेम्बर जब मेरे वाजों की टीम बैंगलोर पहुंची, मेरे पास एक किचन भी नहीं था उस पॉइंट पे. And I was in the hospital and I was like मैं क्या करूं, I don't know the language, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं. And they had a connection, उनका कोई रिश्तेदार था वहां पे जिसका एक स्पेस था. हाँ, उनका कोई रिश्तेदार बैंगलोर में था तो उन्होंने उसको फोन किया, वो हम बैंगलोर आए. हाँ, all Allah. And we found that space. So and I had such a small team. 1000 लोगों ने वो इवेंट अटेंड किया. 1000 people. I called it Kosher Saal. Okay. And it was grand. It was massive. It was a celebration. और 2 दिन पहले my husband had been discharged from the hospital. How we pulled that off, only Allah knows. It was a collective effort by every single person involved. And alhamdulillah, it happened and it was wonderful. खाना लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया क्योंकि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स कश्मीर से लिए थे. मसालों से लेके आपकी इंग्रेडिएंट्स से लेके, और कश्मीरी वाजवान की जान आपको पता है प्राण है. बट इट वाज अ ब्यूटिफुल गैदरिंग ऑफ पीपल जो सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. एंड देन माय हस्बैंड स्टार्टेड सेइंग कि देखो सब लोगों को खाना तो बहुत पसंद आ रहा है, वी शुड डेफिनेटली डू समथिंग अराउंड दिस. एंड I obviously did want to, but I was like हाँ कश्मीरी हैं, कश्मीरी तो खाना पसंद करेंगे, but I first need to understand कि नॉन कश्मीरी खाना पसंद करेंगे. Yes.
तो वहां से आगाज हुआ जर्नी का सरपोश की। अच्छा। और वहां से हम जो है रेस्टोरेंट फॉर्मेट में और वाजवान और ये सारी चीजें उस तरह से जो है अच्छा, आगे। तो इस जर्नी की शुरुआत इस चीज जी। से हुई है। ठीक है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट मंजर एक्सपीरियंस क्यूरेटर्स, जी। ओके, वो एस्टैब्लिश कैसे जी। हुआ? दिस मंजर हैज 3 verticals. जी। इट इज कोशर सरपोश, साल, कोशर साल, एंड वस्तकार। वस्तिकार, सरपोश एंड कोशर कोशर साल. साल, Yeah. जी। So how do these 3 things come together and tell a Kashmiri story? सो आई थिंक इन सारी चीजों का एक क्यूमुलेटिव सरपोश में एग्जिस्ट करता है। Okay. बिकॉज सरपोश वो एक प्रैक्टिकल लिविंग ब्रीदिंग स्पेस बन गया, which is why that is the one thing that I'm sort of recognized by. सरपोश बोल दो तो सब अजमत को पहचानते हैं और अजमत को बोल दो तो सरपोश को पहचानते हैं, बिकॉज वो एक क्यूमुलेशन बन गया ऑफ एवरीथिंग। Okay. जब हमने कोशर साल किया और लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया और इतना सराहा उन्होंने, आई वॉज वेरी श्योर कि जो खाना है वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि नॉन कश्मीरीज के पास एक पैलेट होना चाहिए उसको अप्रिशिएट करने के लिए। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं डाइल्यूशन तो नहीं करूंगी। अगर वाजवान में कोई चीज किसी तरह से बनती है और एवरीबडी टोल्ड मी नहीं, नॉन कश्मीरीज को ना यहाँ पे बैंगलोर वाले थोड़ा स्पाइसी खाते हैं या बैंगलोर वाले थोड़ा चटपटा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, मैं तो कुछ चेंज नहीं करूंगी। बट आई नो अगर आप वेजिटेरियंस आल्सो कमिंग, yes, व्हाट काइंड ऑफ we plate had did you manage for them? Oh lovely, we have such amazing vegetarian food. हमारे vegetarian food में क्या नहीं। So that's what with Sarposh we don't just do Vazwan. Okay. We take the cumulative of Kashmiri cuisine. Okay. हमारे पास इतनी खूबसूरत चीजें हैं वेजिटेरियन खाने That में। is true. एक मिसकंसेप्शन है कश्मीरी खाने के बारे में ये कि कश्मीर इज ओनली नॉन वेज, No. बट नॉन वेज इज अ वेरी वेरी स्मॉल। आपको मैं बताऊं, हमारा सरपोश का जो फुल ऑन एक्सटेंडेड मेन्यू जो है उसमें 4 times more vegetarian dishes हैं than non vegetarian. Non vegetarian में तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि और क्या करूँ, क्या कर सकते हैं। और we don't do experiments. Yeah. We are not a space that so हर जगह का एक अपना हदफ होता है, हर जगह का अपना एक तरीका होता है काम करने का। बहुत सारी जगहें जो हैं वो एक कुजीन को लेती हैं, उसको मॉडर्नाइज करती हैं। बहुत सारी जगहें जो हैं एक कुजीन को लेती हैं और उसके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं और उनसे कुछ खास बनाती हैं और उस तरह से काम करती हैं। सरपोश इज नॉट दैट स्पेस। सरपोश इज अ रेक्लेमेशन ऑफ व्हाट इज कश्मीरी। बिकॉज आप देख लीजिए कि कश्मीर में ही अब थोड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है जहां पे आप एक शादी के बाहर एक रेस्टोरेंट में या होटल में आप कहीं भी नहीं बोलेंगे कि रेस्टोरेंट या होटल का वाजवान इज बेटर देन अ शादी का वाजवान। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज रेस्टोरेंट की प्रिपरेशन, होटल की प्रिपरेशन, वी टुक दैट कॉन्सेप्ट एंड टर्न्ड इट अराउंड ऑन इट्स हेड एंड सेड हम आपको शादी की क्वालिटी का वाजवान देंगे रेस्टोरेंट में। एंड वो आप तभी कर सकते हैं क्योंकि शादी में आप कोई कॉर्नर्स कट नहीं करते हैं ना। आप नहीं बोलते हैं कि मुझे प्राइस कम करना है इसलिए मैं प्याज में बनाऊंगा। आपको जितना प्राण वाजा मांगेगा आप देंगे, जितना घी मांगेगा आप उसको नहीं बोलेंगे डालडा में बनाइए, आप उसको बोलेंगे लो घी और घर के ड्राई फ्रूट्स डालो। दैट वाज व्हाट वी वांटेड टू डू विद सरपोश। तो इनिशियली हमने क्या किया, पॉपअप्स करने शुरू किए। उस टाइम पे मैं अभी भी जॉब कर रही थी क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि क्या होगा, कैसे होगा, एंड आई सॉर्ट ऑफ डिड नॉट वांट टू take a risk at that time. It was like testing phase है ये। Okay. तो Monday to Friday मैं ऑफिस जाती थी। And meanwhile you were also working. जी, I was working at that time. Okay. तो Monday to Friday ऑफिस होता था। Saturday Sunday को इवेंट्स होते थे, फ्ली मार्केट्स। बैंगलोर में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था फ्ली मार्केट्स का। तो हम फ्ली मार्केट्स में स्टॉल्स लेते थे और स्टॉल्स में हम वो जो अपना खाना है वो बेचते थे। और जो किचन स्पेस हमारे पास एक्चुअली उस टाइम पे था ना, वो लिटरली एक छोटा सा शायद इस कमरे से थोड़ा सा बड़ा कमरा था। उसमें बीच में एक दीवार थी जिस तरफ जो उनका मेरे स्टाफ का लिविंग क्वार्टर्स था, दूसरी तरफ का स्पेस था जहां वो खाना बनाते थे। एंड एक पतली सी सीढ़ी थी जहां से जो दिगची है ना उसको लेके आप नीचे नहीं उतर सकते। तो खिड़की से हम बेडशीट बांध के उसको नीचे करते थे और बहुत डिफिकल्ट वो जर्नी थी। और उसको खींच के ऊपर लेके आते थे और जो है पानी का प्रॉब्लम था और बहुत सारे इश्यूज थे उस टाइम में। बट द कॉन्सेप्ट बिकेम अ सुपर हिट बिकॉज खाने में देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ द फूड। आई वाज लाइक
मतलब no matter what it costs me to make it, I will charge that from the customer, but I will not compromise on the quality. तो वो हमने किया और we would set up these stalls and the people who would come there loved the food, absolutely loved it. और उन्होंने इतना enjoy और appreciate उसको किया, that's when I knew कि I am on the right track, but I was like यार ये खाने का model ना ऐसा नहीं है, आप किसी को एक रिश्त नहीं दे सकते हो सड़क पे खाने के लिए स्टॉल में, इट्स नॉट फिंगर फूड जी। और वाज़ान का की एक तरतीब है, एक तमीज है, एक अदब है खाने का, और जब तक आप प्रामी में नहीं खाओ, और जब तक आप प्रामी पे ना खाओ तो मजा नहीं आता है। तो आई वाज लाइक कि ये तो मुझे एक रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट में लेके जाना है। लेकिन उसके बाद आपको पता है 2019 में कश्मीर के हालात थोड़े अगेन बदले। मेरी टीम यहाँ आई हुई थी अपने ईद वगैरह मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि स्टिल पॉप अप स्टेज में थे हम, और प्लान था कि वो लोग वापस आएंगे तो we'll have a restaurant space 6 महीने के अंदर हमारा डिसाइड हुआ था कि रेस्टोरेंट स्पेस। So you were looking for the space? Yes, we were at that point of time looking for a space, और ऑलमोस्ट कुछ फाइनलाइज भी हुआ था, बट हालात यहाँ खराब हो गए, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड यहाँ हुआ 2019 में। That is true. और I lost touch with my team उस टाइम पे, because I was in Bangalore, they were here, और मैं बहुत डिजेक्ट हो गई उस पॉइंट पे, and I was like demotivated. हाँ, अब इस चीज को आगे नहीं लेके जाना है, let's not go ahead with this and let's not do this. But फिर मेरी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया आफ्टर जब कम्युनिकेशन लाइंस रिस्टोर हुई, एंड दे वर लाइक कि मैडम यहाँ तो कुछ काम भी नहीं है, क्या करना है। तो लकीली एक अपॉर्चुनिटी आई, वी गॉट अ प्लेस, अ वेरी गुड प्लेस, तो हमने वो जगह ले ली, एंड बाय द टाइम हमने उसके इंटीरियर्स किए, सब कुछ रेडी किया, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि वी आर गेटिंग स्टार्टेड ऑन दिस अगेन विदाउट अ सिंगल डे ऑफ ऑपरेशंस इन। हम जैसे ही रेडी हुआ, कोविड हैपेंड, और कोविड का लॉकडाउन अनाउंस हो गया। Lot of hurdles. तो उस टाइम पे तो मैं पक्का डिसाइड कर लिया था कि ये दिस इज अ साइन फ्रॉम गॉड कि बस हो गया, ठीक है, जो भी है whatever that we've put in, it's going to be a loss, it's going to be a loss, खत्म करेंगे यहीं पे। But my parents at that point of time said कि if it is just about, I know how much this means to you, and we know how much effort you have put into this. If it's just about the money, we'll pitch in and help you and support you, but don't give up just yet. December तक देख लो क्या होता है। तो सितंबर था 2020 का, जब मैं बैंगलोर वापस गई, और I remember opening the door and standing there and saying कि अल्लाह, मैं बहुत अटैच्ड हूँ इस चीज के साथ, बट मैं आपके हाथ में दे रही हूँ, और मैं ये दरवाजा आज खोल रही हूँ, और 31 दिसंबर तक मैं वेट करूंगी। चलता है ठीक तो आपके भरोसे, नहीं चलता है तो हाँ, दुख होगा, बहुत अफसोस होगा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं ये दरवाजा बंद कर दूंगी और दोबारा कभी इसके बारे में नहीं सोचूंगी। और मैं उस टाइम पे अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करी थी, यूके जाने का प्लान करी थी, तो लाइक मैं उस डायरेक्शन में चली जाऊंगी। not stopping, you were like everything. तो मैं उस डायरेक्शन में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि I was like कोई ना कोई रास्ता तो अल्लाह ने रखा होगा ना। So you were also having a backup. Okay. तो बैकअप नहीं, I was just I was applying for masters at that time. You were not stopping. That is good. That is great. I think अल्लाह को मेरी वो sincerity उस moment में, वो टूटा हुआ दिल मेरा शायद और पसंद आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह there's been no looking back whatsoever. I still remember जब पहला ग्रुप ऑफ पीपल आया, और मुझे याद है कि जब हमने पहली अपनी डबल डिजिट सेल की, पहला दिन, आई वॉज सो हैप्पी कि we've crossed the 9,000 mark today. और आज मैं पलट के जब पीछे देखती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह is the only word that I have for what all God has blessed us with in this beautiful, beautiful journey. और मैंने उस जगह को अपने इन 2 हाथों से मेहनत करके खड़ा किया है। मैं टेबल्स भी वाइप करती थी, मैं वहाँ झाड़ू भी लगाती थी। So when you started it, like who helped you, who financially assisted you in setting up a restaurant in Bangalore, because it's not that easy. So initially the investment जो basic
So the space that we actually took was a restaurant that existed there already and that had shut down. तो हमें कोई बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं करना पड़ा. There was some investment that my husband put in. There was some money that I had which I had put in, and a major chunk of the financial assistance into setting up the place and sustaining it for that period. जिस period में हम COVID वगैरह में थे, that came from my parents. Okay, that's lovely. That's lovely. And how many people were you employing at that time, and how many do you have now? We started with a team of 4 people. 4 people. We are 30. We are at 30 regular full-time employees right now. Right now. Yes. Okay. उस वक्त 4 थे. जी. जी. पकाता कौन था और सर्व कौन करता था? तो पकाने वाले 3 बंदे थे, जिसमें से मतलब there was one guy who would do the breads. So सब multitasking करते थे. So you got the cook from Kashmir only? जी. पूरी टीम, आज भी पूरी टीम कश्मीर से ही है. The entire team is still from Kashmir. So it's authentic Kashmiri. My first Restaurant. staff that I had hired, they're still with me, mashallah, even today. आज भी वो लोग मेरे साथ हैं. एंड एक बहुत छोटे से लेवल से आई रिमेम्बर उन लोगों को मैं वक्त पे, जब कोविड हुआ, जब भी सारी चीजें बंद हुआ, वो भी डिजेक्ट हो जाते थे. एंड आई यूज्ड टू कीप प्रॉमिसिंग देम, एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग देम कि तुम बस साथ दे देना. आई प्रॉमिस यू, आई बिलीव इन द विजन दैट आई हैव फॉर दिस प्लेस. आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम लोगों को दुनिया दिखाऊंगी. और मेरी टीम माशाल्लाह अभी जस्ट इजिप्ट से वापस आए हम लोग. अबू धाबी में हमने इवेंट्स किए, वियतनाम में इवेंट्स किए, फ्रांस में हमने इवेंट्स किए. वो कौन सी जगह है जहां हमने इवेंट्स नहीं? हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह every month there is an event that we are doing. My team has taken more flights in a month than most people would have taken in a year. Because अभी दिल्ली में है, अभी बॉम्बे में है, अभी कोलकाता में है, अभी हैदराबाद में है, अभी चेन्नई में है, अभी भुवनेश्वर में है, अभी उदयपुर में है, अभी हम लोग उदयपुर निकल रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अंबानी वेडिंग is something that I have to know, how did you reach there? दावत थी? नहीं, दावत नहीं थी. हम दावत ही समझ लीजिए. So I was actually pregnant at that time. Okay. I was What year was this? This is 2014. Okay. 2014. It was Ambani event. जी, Okay. Ambani wedding. I remember कि मेरी तबीयत खराब थी, and you know how in pregnancy, I was feeling lethargic and lazy, and I get this call from somebody, and he's like, there is an event that we want you to do, and can you fly down to Bombay? और हम already तब तक काफी pop-ups कर चुके थे. Okay. हमने almost सारे hotel chains. Restaurant setup नहीं हुआ था? नहीं, restaurant हो चुका था. Restaurant already established था. Pop-ups. जी. Restaurant already established हो चुका था, और You named it? Sarposh. Sarposh. We named it Sarposh, and रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश हो चुका था. इतना प्यार रेस्टोरेंट को मिल चुका था. हम एवरी ईयर ऑन ईयर टाइम्स बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीते. हम लोग रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतते रहे. हम जितने आपके बेस्ट रेस्टोरेंट्स की लिस्ट, एंड हमारा सेटअप बहुत बेसिक सा है. हम कोई it's not a fancy setup. It is not a hi-fi kitchen. It is a very traditional kitchen. हमने सौंदर बनाई वहां, because हमारे टीम ने बोला, मैडम दीकचे किस पर चलो, हम दीकचों में खाना बनाते हैं. इट इज अ वेरी वेरी बेसिक. हमारी इन हाउस ऑथेंटिकली कश्मीरी, हमारी इन हाउस बुचरी है, जहाँ पे गोश्त स्लॉटर होके डायरेक्टली हमारे पास आता है. हमारा वाजा खुद जो है, जिस तरह से वाजे ट्रेडिशनली गोश्त को खुद काटते हैं, करते हैं, बिकॉज दोस थिंग्स, और एब्सोल्युटली फ्रेश होना चाहिए. तो वो सारी चीजें हमने फॉलो की. मेरे पेरेंट्स यहाँ से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं कश्मीर से जाते हैं. हम वी हैव अ फार्म हियर इन कश्मीर, जहाँ पे हम अपना प्राण खुद ग्रो करते हैं. Lovely. When did you start that? The farm, हमारे पास लैंड काफी पहले से थी. देन जब सरपोश हमने स्टार्ट किया, और जी इनिशियली हम फार्मर्स से लेते थे. इनिशियली हम फार्मर्स वगैरह से लेते थे. उसके बाद हमने रियलाइज किया जब हमारी खुद की कंजम्पशन इतनी है, लैंड अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट. सो वी स्टार्टेड ग्रोइंग. हमारा ट्राउट फार्म है अपना. हम अपनी ट्राउट यहाँ से कश्मीर से भेजते हैं, और हम वहाँ पे ट्राउट ही, हम वहाँ कोई और फिश नहीं यूज करते. हम अपने फार्म की ट्राउट वहाँ पकाते हैं. हम यहाँ से हमारा नदुर जाता है, यहाँ से हमारा हाक जाता है. हम अपना मैक्सिमम
जो आइटम्स है उनको खुद ग्रो करते हैं और यहाँ से प्रोक्योर करके जाते हैं, एंड ऑल दैट इज हैंडल्ड बाय माय पेरेंट्स ओवर हियर। सारा खाना त्राम में बनता है, सो ऑल दोस थिंग्स हमने बिल्कुल, बट हमारा कोई we're not a fancy setup, we are not an investor backed setup, we are not a setup where we had crores in our pocket for marketing and promotions, none of that, और सिर्फ word of mouth। मुझे याद है कि पहले 3 साल of running the restaurant, एक कस्टमर ऐसा नहीं था जिससे मैं मिली नहीं हूँ, जिससे मैंने बात नहीं की है, एक पोर्शन, एक ऑर्डर ऐसा नहीं था जो मेरी नजर के सामने से किचन से बाहर नहीं निकला है। And I think that's what paid off. That mad obsession with doing what I'm doing right, and absolutely no compromise on that. जब हमने शुरू किया तो कोविड के बाद जब हमने फाइनली शुरू किया, I did not have a tandoor at that time. मैंने मेरे ख्याल से 4-5 महीने तक रेस्टोरेंट चलाया और मेरे मेन्यू पे कोई ब्रेड्स नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला बैंगलोर में रेस्टोरेंट चल नहीं सकता जब तक उसमें बिरयानी नहीं होगी। मैं कहा कश्मीर में कोई बिरयानी नहीं है कुजीन में, मैं बिरयानी नहीं रखूंगी। जिसको बिरयानी खानी है उसके पास हजारों रेस्टोरेंट है, जाके बिरयानी वहां खाए, मैं नहीं बिरयानी सर्व करने वाली। सो दैट मैड ऑब्सेशन आई थिंक रियली पुट अस अप देयर in terms of recognition, in terms of love, and people recognized कि यार ये जो कर रहे हैं ना ये कुछ honest है। कश्मीरियों ने खुद आके अप्रिशिएट किया। कश्मीरीज जितने बैंगलोर में बसे हुए रहते हैं उनकी कोई ऐसा इवेंट नहीं होता, उनके बच्चों की कंसम्बिन होते हैं, खत्म कुरान होता है, बिस्मिल्लाह कुरान होता है, बर्थडे होता है, दे आर सेलिब्रेटेड एट सरपोश। शादियां हैं, निकाह हैं, एंगेजमेंट्स हैं, जो भी है दे आर डन एट सरपोश। आपका JNK बैंक है, उनके कोई इवेंट कंप्लीट नहीं है विदाउट फूड फ्रॉम सरपोश। तो कम्युनिटी ने अपना लिया हमें, एंड हमने जो प्रॉमिस कम्युनिटी के साथ किया था उस पे हम साबित कदम रहे। उस पे हमने कहा कि वो हम कभी आपको धोखा उस चीज के लिए नहीं देंगे, एंड द कम्युनिटी गिव अस दैट लव बैक। तो इट वाज अ 2-way स्ट्रीट, और उस चीज की वजह से इतना रिकग्निशन और लव मिला था। तो वन फाइन डे आई गेट दिस कॉल जहां पे मुझे कोई बोलते हैं कि देयर इज अ हाई एंड इवेंट, और सारे होटल चेन्स तब तक wanted to do pop-ups with us, तो हम लीला के साथ, मैरियट के साथ, ओबरॉय के साथ, सबके साथ हम पॉप-अप्स करते रहते थे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स हमें बुलाते थे और पॉप-अप्स हम उनके साथ करते थे। We served celebrities. Deepika Padukone is a very big fan of our food. Whenever she's in Bangalore, Deepika and Ranveer order from us. So that whole love and affection is something that we were able to build. So what travels na? हमें नहीं पता था that this is for the Ambanis, and I remember I got this call, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ मैं आपको भेज दूंगी, and I remember मैं सो गई। When I wake up I have 3-4 missed calls from this person, and he's like, this is really urgent and this is a very high-end client, so can you hurry up and you have to fly down to Mumbai tomorrow to do this. तो I was like, इतनी क्या urgency and what is this? I'm like, can you tell me who the clients are? They're like, it's the Ambanis. तो उन्होंने पहले हमें एक घर बुलाया, so we went to Antilla, और उन लोगों का एक जो है इवेंट था एट होम, उन लोगों का एक इवेंट था जिसमें सारे ऑल द सेलिब्रिटीज वर देयर, बट वी स्क्रैम्बल्ड, वी पुट टुगेदर अ टीम, हरीडली वेंट, एंड इट वाज अ प्योरली वेजिटेरियन थिंग। तो प्योर वेज करना है, vegetarian food for them. Yes, 100% vegetarian food for them, and they also wanted us to do a lot of dishes with no onion, no garlic. तो वैसे ही हमारा खाना जो है no onion, no garlic हम लोग। But what was the cuisine for veg? So हमने ना अंबानीज को उबुज खिलाई, हमने उनको सचल खिलाई, हमने उनको लिस्त खिलाए, हमने उनको नुनर खिलाए, Lovely. हमने उनको नदर खिलाए, हमने उनको गोगजे आर और रजमा खिलाए, हमने we did a lovely menu and there were so many greens they loved. हमने उनको चौकवांगन खिलाए, हमने उनको दम आलू खिलाए, एंड थिंग्स जो आप एक बहुत सारे कश्मीरियों ने घर में भी नहीं खाई होगी। हमने हाक किया उनके लिए, हमने पालक किया उन लोगों के लिए, हमने नदरमंज किए उनके लिए, हमने उनके लिए जो हमारा वायरमुट मसाला, हम क्रून मसाला जो करते हैं, हमने वो किया उन लोगों के लिए। दे एब्सोल्युटली लव्ड द फूड. They went crazy about the food. I still remember कि boxes and boxes of food were packed and sent to relatives and friends and all of that. We have to accept this. We have a variety of things. We Absolutely. are so rich in culture. कितना कुछ है हमारे पास. If you put the best foot forward, Yes. and
I remember my Vaza looking at me कि madam बस just Maz बनावन, like you know you're You made him cook हाँ, vegetarian हाँ, food. you- The I was like- vaza. and he was like Maz just traun क्यों की absolutely not, because हम वैसे भी रेस्टोरेंट में जो वेजिटेरियन खाना बनाते हैं we do not and हम लोग तो बहुत सारा खाना हमारा बनता है जो हम कस्टमर्स का स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रहता है जैन ये नो अनियन नो गार्लिक, Yes. तो हम उनके सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके हमने अल यखिन खिलाई उनको, हमने कनगुच खिलाया उनको, हमने अंबानीज को एक मशरूम की वैरायटी कश्मीर में मिलती है जिसको शाहजकन बोलते हैं शाहजकन. जी, Okay. वो आपको कुपवारा साइड वगैरह पे मिलता है, इट्स अ वेरी सीजनल थिंग, और लकीली उस टाइम पे वो सीजन में था। हमने शाहजकन का आबगोश बनाया उनके लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमने उनके लिए की, दे एब्सोल्युटली लव्ड द फूड, और इमीडिएटली द ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर द मेन वेडिंग, और फिर मेन वेडिंग में हम लोगों ने उनके लिए जो एंड दे वांटेड द एंटायर मेन्यू रिपीटेड, जो तो वाजवानी भूल गए, जो 18-20 आइटम थे हमारे, एंड यू नो हमने गिर्द किए उनके लिए, लवास किए उनके लिए, हमने उनके लिए शिरमाल की, हमने उनके लिए कुल्च किए, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं जिनका कश्मीरी कल्चर से हमने एक इंट्रोडक्शन ना सिर्फ उनको दिया बट उनकी जो इतने एलीट क्लाइंट्स थे उनको दिया, एंड वहां से सिलसिला हमारा शुरू हुआ जहां हमारे लिए दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज खुल गए, जिसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल कंट्रीज में इवेंट्स किए, मल्टीपल सिटीज में इवेंट्स किए, और जो है लिटरली अपने मेन्यू को हम फार एंड वाइड लेके जा सके। तो ये थोड़ा हमारी जर्नी थी सरपोश की। Okay, so tell me something. See, we have a thing, and we recently had rotten meat issue going on. जब बात खाने की आती है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा messed up हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, and there is a confusion that people also want to, you know, be on diet and eat healthy, conscious भी हो गए उस हिसाब से लोग. So how do you maintain that consistency that with everything in hand, you do not want to compromise on quality? Honesty is the most important thing, and हमारे लिए जो वेंडर्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, मुझे याद है कि 1 साल का रिसर्च लगा मुझे रेस्टोरेंट का, जो हमारा वो टाइम था ना जब हमने अपना पॉपअप्स बंद किया, और पॉपअप्स के बाद जो है हमने फाइनली रेस्टोरेंट खोला, उसके बीच में लगभग 1 साल भर का टाइम था, और वो पॉपअप्स वाले टाइम में भी इट टुक मी अ ईयर ऑफ रिसर्च, क्योंकि देखिए कश्मीर में भी वाजवान एक ऐसी चीज है, या फॉर दैट मैटर हम आपको ये एक नुआंस बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं खाना बनाने की और किचन में यू नो खाना बनाना एज अ चोर की बात करते हैं, तो दैट चोर इज सॉर्ट ऑफ समथिंग जो हमारी मेंटालिटी है कि ये औरत का काम है, बट जैसे ही it's not necessary you take it in a negative no definitely I'm not saying that you know it's a negative thing, but जहां पे बात आती है खाना बना के उससे पैसा कमाने की, औरत खाना बना रही है तो वो कुक है, मर्द खाना बना रहा है तो वो शेफ है ना, और वाजवान एक ऐसी चीज है खास तौर पे जहां पे औरतों की जब आप बात करें तो उनका रोल उसमें क्या होता है, हाक चारुन, प्राण चारुन, रोहन चारुन, सब्जी चारुन, मसाल चारुन, बाकी चीजों में उनका कोई रोल नहीं है। मर्द हैं, माजरटुन मर्द का काम है, बाकी सारी चीजें which is ठीक है the way the society sort of works, but मैं एक 22 साला लड़की थी जिसको कहाँ पता था ये सारी चीजें, तो मुझे ये सब सीखना पड़ा वहां जाके, ताकि मेरा वाजा when I say something, मैं आज उसको कुछ भी बोलूं, he listens to me with a lot of respect, and hats off to him for doing that, because वो अपने क्राफ्ट का मास्टर है, लेकिन वो ये अंडरस्टैंड करता है कि इस लड़की ने टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्ट किया है in studying this. You still have the vaza that you had first day? Yes. What is his name? His name is Chef Hussain. Chef Hussain. Yes. Okay. Lovely. I still have him with me, and he's literally my right hand. He's literally my backbone. And हमने साथ में grow किया है. And so he has contributed a lot to Sarposh. Yes. Without his
डेडिकेशन, विदाउट हिज उसकी एग्जिस्टेंस के बिना सरपोश एग्जिस्ट नहीं कर सकता था. क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये आज हैं आपके पास, कल चले जाएंगे छोड़ के आपको. बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 7-8 years in now, एंड वो बंदा आज भी मेरे साथ है. मैंने भी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और उसने भी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया. सो दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. बट माई पॉइंट वॉज कि मुझे 1 साल लगा to study the meat that we are using. हम क्यों यूज करते हैं, क्या हम यूज करते हैं. I remember I went to Dubai for Gulf food to just try and understand कि क्या किया जा सकता है कि जो हमारा रिश्त है, गोश्ताब है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है उसको और हाइजीनिक बनाया जा सके. क्या किया जा सकता है कि उसके प्रोसेस को और अच्छा बनाया जा सके. ऑल ऑफ दैट. और मैंने कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किया इन स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस कुजीन बेटर. कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किया इन स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या करें. और आई एम ब्लेस्ड विद अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट वेंडर्स. मेरा जो वेंडर डे 1 पे जिससे मैं मीट लेती थी, देर आर ऑल ऑफ, मेरे ख्याल से इतने साल की रिसर्च में आई रियलाइज कि 3 या 4 वेंडर्स टोटल हैं जो जिस तरह का मीट हमें वाजवान के लिए जरूरत है उस तरह का पूरे बैंगलोर में सप्लाई करते हैं. और जो मेरा मीट वेंडर है वो इतने सालों से आज भी वही है और आज भी मुझे वही क्वालिटी का मीट प्रोवाइड करता है और उसको पता है इसको क्या चाहिए. और मेरी टीम भी बहुत पर्टिकुलर है इन चीजों के बारे में और मेरा वेंडर भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है. देयर हैव बीन मेनी टाइम्स जब वो खुद से द वेंडर वाज नॉट देयर, उसका कोई स्टाफ था वहां पे, कुछ भेज दिया उसने व्हाटएवर, एंड मेरी टीम ने वापस भेज दिया एंड ही इज टेकन इट बैक कि हाँ ठीक है ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं आपको वो प्रोवाइड नहीं करूंगा जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं. तो वो लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आप में और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जब एक इकोसिस्टम में वो होगी ना तब जाके आप वो कर सकते हैं. बहुत सारे कश्मीर के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं सफर कर रहे हैं इस वजह से, इस मीट रॉटन मीट कंट्रोवर्सी या जो अडल्ट्रेटेड फूड कंट्रोवर्सी है इसकी वजह से. एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज वो अपने वेंडर को ट्रस्ट करते हैं, उनका वेंडर ऑनेस्ट. तो दैट एंटायर सिस्टम एंड दैट एंटायर इकोसिस्टम एंड दैट एंटायर चेन हैज टू बी ऑनेस्ट. And I've been blessed to work with very honest people in this entire journey. मैंने कहा ना कि अल्लाह ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और कहा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं रास्ते खोलता जाऊंगा, तुम चलती जाओ मैं रास्ते खोलता जाऊंगा. और वही हो रहा है मेरे साथ. बिकॉज इतना आसान नहीं है वही क्वालिटी जो आपकी day 1 पे थी वही क्वालिटी आज भी मेंटेन करना. If only it's only gotten better, alhamdulillah. And that's not me saying it, that's all the people who've been patrons of Sarposh for all these years. And देखिए एक बैंगलोर जैसी जगह में जहाँ पे रेस्टोरेंट सीन का चर्न इतना हाई है, पहली बात तो यूर रनिंग अ प्लेस एक बैंगलोर जैसी जगह में जहाँ पे अल्कोहल के बिना जगह नहीं चलती. आई वाज वेरी क्लियर कि आसमान जमीन एक हो जाएगा. इट डज नॉट अलाइन विद माय व्यूज. आई विल नेवर हैव अल्कोहल इन माय स्पेस. एंड बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं चलेगा नहीं बैंगलोर. मैंने कहा ठीक है नहीं चलने दो, कोई बात नहीं है. जिसको if somebody wants to come, that's not who I am, that's not what I'm going to serve. आपको चाहिए, there'll be other places that might want to do that, please feel free to go there, this is not the space for that. And people come to me, they know कि यहाँ पे alcohol नहीं है, despite that they come ना, because उनको वो जो खाना जो मेरा the value that I'm providing, they're coming for that. मैं अपने आप को bend नहीं करूंगी टू प्लीज यू. मैं आपका रोगन जोश स्पाइसी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपको स्पाइसी पसंद है. मैं आपको मर्चवांगन कोरमा दे दूंगी, मैं आपको हिंदी रोगन जोश दे दूंगी, मैं आपको ऑप्शन दे दूंगी. आपको खट्टा पसंद है मैं आपको चकवांगन दे दूंगी, मैं आपको अलियाखिन दे दूंगी. आप आई हैव, एंड उसके बावजूद भी इट्स ऑन योर पैलेट, आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए, बट आई विल नॉट बेंड टू प्लीज यू. हमारे यहाँ कश्मीर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे, बिकॉज हम एक ऐसी जगह जो टूरिज्म पे काफी डिपेंड करती है ना. तो जब हमारे पास जब हमारे पास टूरिस्ट आता है और हमें बोलता है कि जी कश्मीरी वाला बिरयानी हमको दे दीजिए, तो हम उसको बिरयानी देते हैं और बोलते हैं ये कश्मीरी बिरयानी है. और मेरे पास लोग आते हैं, आई रिमेम्बर अभी भी एक एपिसोड मुझे याद है जब शिव सागर के ओनर मेरे रेस्टोरेंट पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे क्या खिलाओगी. मैं कहा आपको तो मैं कश्मीरी पुलाव खिलाऊंगी क्योंकि आपने ना कश्मीरी पुलाव का नाम बर्बाद करके रखा है. उसमें चेरी डाली, उसमें पता नहीं पिस्ते डाले, सफेद रंग का मीठे चावल बना दिए. और कश्मीर, कौन सा कश्मीरी पुलाव ऐसे बनता है? कश्मीरी पुलाव बनता है माज रस में, उसके ऊपर पड़ता है ड्राई फ्रूट.
वो नहीं है वेजिटेरियन, वो नहीं है मीठा चावल, उसमें नहीं पड़ती है अनार, उसमें नहीं पड़ती है पाइनएप्पल, एंड आपको तो खिलाऊंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए असल चीज क्या है. So that is the thought with which we always moved forward, and that's what paid off for us. And उस चीज के लिए लोग हमें रिकग्नाइज करते हैं कि ये एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग वॉइस ऑन कश्मीरी फूड है. फिर छोटी छोटी चीजें जिस तरह से जो हमारा नोमेनक्लेचर है, लाइक हमारे रेस्टोरेंट में रिस्त को रिस्त ही बोला जाएगा, रिश्ता नहीं बोला जाएगा. गोश्ताब को गोश्ताब ही बोला जाएगा, यखिन को यखिन ही बोला जाएगा, यखनी नहीं बोला जाएगा, नदुर को नदुर ही बोला जाएगा, नदरू नहीं बोला जाएगा. क्योंकि जब आप एक इटालियन रेस्टोरेंट में, एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में, मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आप उसी तरह से उसको प्रोनाउंस करें, अदरवाइज यू गोना साउंड अ लिटिल गोना साउंड एज इफ यू डोंट नो व्हाट यूर. हाँ, तो व्हाई वोंट यू शो दैट सेम रिस्पेक्ट टू कश्मीरी कुजीन? एंड दिस इज समथिंग जो मुझे अपने स्टाफ में भी इम्बाइब करना पड़ा. मुझे याद है कि हमने थोड़ा फिरन स्टाइल पे उनके हमारे जो फ्रंट ऑफ हाउस स्टाफ है उनके फिरन स्टाइल की स्टाइल फिरन कुर्ता जैसा हमारा कश्मीरी मर्द पहनते, यजार शलवार वाला ड्रेस. एंड आई रिमेम्बर एक मैनेजर मेरा, मैडम ऑल माई लाइफ मैंने कोट पैंट पहना, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दिस. मैं कहा टेक प्राइड इन व्हाट यू आर वेयरिंग. ये तुम्हारा एक ये है ना, आप यहां से बाहर आप जीन्स पहन लो, आप जो पहनना, बट सरपोशन इटसेल्फ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज कश्मीर. आपके पूरा डेकोर वहां पे जो है सब हमारे क्राफ्ट पर्संस का किया हुआ है. वहां पे 18 क्राफ्ट्स हैं जो हमने डिस्प्ले पे अलग अलग तरह से रखे हैं, वो इनकॉर्पोरेट किया. दैट इज द डेकोर ऑफ द प्लेस. वहां खत्म बंद रिप्रेजेंटेड है, आपका वॉलनट वुड कार्विंग रिप्रेजेंटेड है, पेपर मैशे रिप्रेजेंटेड है, आपका जो है आरी का काम रिप्रेजेंटेड है, क्रूल कश्मीरी लिया है उधर. आपके पश्मीना के शॉल्स हैं, सोजनी का काम है, आपका आरी का काम है, आपका विकर वर्क है. जितने भी आपके कश्मीरी क्राफ्ट जहन में आते हैं, आपका सिल्वर के क्राफ्ट्स हैं, जितनी भी चीजें आपके जहन में आती हैं, उन चीजों की छोटे छोटे अक्स हमने वहां पे अपने डेकोर में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं. हमने 2 स्टेटमेंट चेयर्स बनाई हैं जो चेयर्स हैं बट लार्ज साइज कांगड़ी हैं एक्चुअली. कांगरी कुर्सी बोलते हैं हम उनको. तो बहुत सारी चीजें हमने इस तरह की हैं. आर्ट वर्क है जो कश्मीरी आर्टिस्ट का बनाया हुआ है. जितनी किताबें वहां हैं कश्मीर के बारे में हैं, कश्मीरी ऑथर्स की लिखी हुई हैं. और इट इज दैट सॉर्ट ऑफ it's a space जो holistically कश्मीरी है. स्टाफ पूरा कश्मीरी है. बिकॉज मैं एक नॉन कश्मीरी स्टाफ को कितना भी ट्रेन कर लूं, मैं उसको कभी वो लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं दे पाऊंगी जो एक कश्मीरी यहाँ से जाके वहां पे दे सकते हैं. तो उस तरह से जो है विद अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी वी हैव बिल्ट दैट स्पेस, एंड दैट्स समथिंग दैट हैज बीन लव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय द. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. अज़मा, डू यू लाइक मर्चवांगन कौरमा? I really like मर्चवांगन कौरमा. मैं एक ऐसा ही सवाल पूछूंगी. What is your yearly turnover? This is not for public consumption, but alhamdulillah, it's really... You're happy? Yes. You're happy. Satisfied? Yes. Lovely. We can always do better. There's always scope for doing better. And
we're not stopping anytime soon. We're definitely going to be doing a lot more, but But alhamdulillah. so what's next for Sarposh? More cities, more or deeper experiences? I'm really in that moment where I recently had a baby. My baby is just 16 months old, and I'm in that phase where I am slowly getting back to sort of juggling both motherhood and work together. Okay. But being a woman at the same time and in a different, state, and establishing a restaurant, now you're also a mother. So how do you balance all of this? And you might have also faced many barriers. a support system is the most important thing that you can have. Yeah. It is not easy for anyone at any stage, whether you're a stay-at-home mom, whether you are someone who has a work from home situation, whether you're someone who goes to an office. I will not say working mother, because every mother is working, whether you're staying at home, you're still working, or whether you have your own business, whether you have your own establishment. There is no there is no scenario in which any of this is going to be easy. Yes. But the most important thing is that you need to have a very strong support system. Please get whatever help you need. Don't shy away from taking help, whether it is from your parents, from your family. You need to hire a nanny, you need a house help, because your child did not come in this world on their own. Yes. They deserve A better place. They deserve to be treated with with respect. It is very important that you respect this little being that you've got into your life. It is not कि आपने पैदा कर दिया और आप छोड़ देंगे और फिर पल जाएगा or whatever. They need your time, they need your attention, they need your care, and you can only do it if you are not mentally exhausted, if you are not trying to do a million things all by yourself. I understand that this is a point of privilege. I understand that not everybody has the luxury of doing this, but if you have it, please use your resources so that instead of if there is something that you can delegate, please delegate that, because motherhood is not something that you can delegate. I can delegate work at my business, even though my business is equally like a baby to me. I've always treated it like that. But this is a living, breathing human being who deserves your presence, your kindness, who deserves a calm parent, who deserves somebody who's present with them and in the moment with them. So, I feel कि मेरे life की इस वक्त सबसे बड़ी priority ये है to ensure that I'm there for my child. I'm enjoying every moment of his time. I don't want to miss out on anything that he's doing. I don't want to miss out on the first time he walks, the first time he smiles, the first time he says a word, his first two. I don't want to miss out on anything. I want to be there for everything. And alhamdulillah, I have the privilege where I can sit back and sort of do that. Alhamdulillah, I have a team that we've built over the last so many years, which is able to handle things while I'm not there. I have a huge support system in the form of my parents. What would I ever do without them? I mean, I would be nothing without them literally being my backbone. सबकी रीढ़ की एक हड्डी होती है, मेरी 3 है, एक अपनी, 2 मेरे माँ बाप की, और literally that is the kind of support system that I have in them and in my entire extended family. You have to understand कि जो आपके खुद के parents आपके लिए कर सकते हैं, your मोल मोज कर सुकर बेका. And especially when there are cultural differences, it's very difficult for especially उस तरह के culture में जहाँ पे उनके यहाँ लड़कियों का ज्यादा फोकस होता है, घर गृहस्थी संभालने में, गोल रोटियां बनाने में. आई डोंट कम फ्रॉम दैट अपब्रिंगिंग. तो उनके लिए ये चीज समझना, मेरी ड्राइव को, मेरे एम्बिशन को समझना, एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना, उतना it's not that easy, right? Yes. When but does your partner support you? He's been there with me through it all. He has stood with me through it all, and there's a lot that we've done together, but none of it would have been possible without my parents. Yes. None of it would have existed without the unwavering
support of my parents. That is love. Unwavering, absolutely unwavering. And my brother, who's literally been my counsel in life ke har up and down mein. He's 5 years younger to me, but like he's literally the one person. When things are not right, he's the one I reach out to कि क्या करूं मैं इस situation में क्या करना चाहिए. तो people need that kind of people. Yes. So I'm really, really blessed. But most importantly, my team back at the restaurant who have stood with me, who've supported me, who've been there for me, who's really, they've really grown with me in this journey, supported me in this journey, and alhamdulillah, very, very good retention rate also. If people, if we have a team of 30 people and there's a churn in the restaurant industry, hota hai aise. If somebody goes, they all we've rehired people over 2 years, 3 years, 4 years aise. So average age of employees with us is around 4 years. So before we sum up this episode, I would want to ask, Sarposh is going lovely, right? But what is Manzar Experience Curators looking forward to? See, as I said, I'm really enjoying motherhood at this point of time. And I'm not somebody who's going to be chasing numbers. I'm not someone who... Because there's a greater purpose to what we are doing. पहले हम reclaim तो कर लें इस narrative को. I don't want some XYZ person जिसमें ना स्किल है उसको आर्टिकुलेट करने का, ना नॉलेज है, ना कोई लिव्ड एक्सपीरियंस है, टू टेक माई फूड एंड कुजीन एंड रूइन इट्स नेम. मेरे पास बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते थे जो कहते थे बिफोर वी एट एट सरपोश हमें लगता था कि कश्मीरी फूड इज नॉट फॉर अस. आपको ये इसलिए लगता था क्योंकि आपने अच्छा कश्मीरी खाना कभी खाया ही नहीं था. जब आपने सरपोश पे खाना खाया तब आपको रियलाइज हुआ कि कश्मीरी खाना एक्चुअल में कितना अच्छा हो सकता है व्हेन इट्स डन राइट, व्हेन इट्स ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, व्हेन द इंग्रेडिएंट्स आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. तो हमारे लिए at this stage of life it is not important. I'm not chasing numbers. I'm not running behind कि अच्छा अब यहाँ एक सेंटर खोलूंगी, वहाँ एक ये करूंगी, इतना एक्सपेंशन करूंगी, ये वो. That's also going to happen in its own due course and time. Yes. When Allah has willed it to happen, when the right opportunity. That said, I'm not averse to the opportunity. आपके चैनल के वसादत से अगर कोई है जो हमारे साथ रीच आउट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ग्रो करना चाहते हैं, but I'm very particular about my belief in what I'm doing. Okay. If your values align with what I'm doing, then please feel free to reach out to me. I would love to speak to you. I would love to hear what you've got to say. And कोई ऐसी opportunity सामने आती है जहाँ पे हम साथ में कुछ और बड़ा और अच्छा और interesting कर सकते हैं, I would love that. But at this point, I'm not chasing anything. I'm letting this grow organically. एंड मेरा फोकस इसी चीज पे होगा कि हम जो कर रहे हैं उस चीज को ट्रूथफुली करते रहें. और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे जैसे हम ठुकरा कुछ नहीं रहे, but we are picking and choosing what works for us, what aligns with us, what aligns with our values. और उसी तरह से हम जो है इसको आगे लेते जाएंगे. और there is no big ambition कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है. दिल में सब है, but in its own due course, in its own due time. अल्लाह ने चाहा तो जी, अल्लाह ने चाहा तो. और सबसे बड़ी बात है कि तब जब उसका ट्रेड ऑफ हमारी ऑनेस्टी ना हो. That is the most important thing. कि ग्रोथ और स्केल के चक्कर में जो जिस मिशन पे निकले हैं ना, और जो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज के साथ ट्रूथफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो वो पैसा भी आप रख लीजिए, वो ग्रोथ भी आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी विद what we are doing. मतलब पन हाक बद से ख्यावान सेट हाच. Whispered. Pun हाक बद गेस बिल्कुल. Love. हलालुक. Yes. Let's move to our हाक बद rapid fire round. Fine dining or immersive dining? Immersive dining. Bazban or any other cuisine? Kashmiri food over everything else. Pop-ups or permanent spaces? A mix of both. Mix of both. Okay. One Kashmiri dish the world must experience at least once. This is very difficult.
there are way too many. Abgosh, Hars, मैं सुबह ही खाया. yeah, lots and lots of different things. But I think also Haak. हाँ. I think also Haak done right, really well. Maybe मतलब आप किसी के घर नो छठाक आप किसी के घर अनअनाउंस्ड चले जाएं और मतलब तुमन जो सिर्फ हाक रहना वो वाला हाक एक्सपीरियंस करना, because that's really the soul of even when we invite some people, just for the sake of inviting them, we do say that हाक बच्ची रहने वाले. Yes, that is true. So this is the question that I would want to ask, because it's a very tough tie for me. Rogan Josh or Goshtaba? यार Gostab. Anytime. Yeah. Okay, yeah. That's lovely. Thank you so much, Azmat. You Thank came you. here. We had a lovely chit chat. मेरे मुंह में पानी आ गया. I don't know about Ambani's, but you have to make me try the veg cuisine you Absolutely. have. Okay. We will see you again, and we wish you all the best ahead. Thank you so very much for having me. I love talking about what we are doing, but more than talking about it, I really love doing what we are doing. So thank you so much for giving us a platform कि आपके platform से हम और लोगों को बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है Please keep doing अपने that. और सिर्फ एक चीज से मैं the only thing I would want to close by saying is telling all Kashmiris, please own, मतलब अपने कल्चर को जहाँ से आप आए हैं, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, उससे शर्माइए नहीं. आपको शर्माने की उससे कोई जरूरत नहीं. हाँ ठीक है, आप सुशी पसंद करते हैं, सुशी भी एंजॉय कीजिए. You like to dress a certain way, you like to look a certain way, जो भी चीजें, but जो आपका अपना है ना, उस पे आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं. चीज घसना राव. बिल्कुल. मतलब फेरन लागनस शर्म मीन कर्शपट काट करनस गसन शर्मिंदा गसन या पन्निस सिनिस खेनस वतनस बहनस पन्निस कल्चरस, स्पेशली दूसरे को प्लीज करने के लिए प्लीज वो ना करें. Take pride in who you are, take pride in your culture, और really wear it on your sleeve. मतलब क्या कुछ नहीं है हमारे पास, और क्यों शर्माएं हम कश्मीरी होने से, अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी को हम क्यों जो है खो दे. बिल्कुल. तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी अजमत अली मीर. इन्होंने बहुत सारी बातें की, हमारा एक प्यारा सा चिट चैट रहा. एंड देयर इज़ वन थिंग जो मेरे दिमाग में रही, एक चीज़ जो आपके दिमाग में भी रहनी चाहिए, वो ये थी कि व्हेन पर्पस लीड्स सक्सेस फॉलोज, एंड शी इज़ समवन हु just doesn't serve food but also serves identity with authenticity. That's all for today. Keep watching Kashmir Life.